ठीक है, सो ग्रेविटा 3 पैरा 2 at 32 weeks with blood sugar levels. यस। जी नुसरत, आप 30 मिनट्स में स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन वाला कर लेते हैं और फिर हम मैनेजमेंट डिस्कस कर लेंगे इन हाफ एन आवर, ताकि सेकंड हाफ जी मैम। में फिर हमारी सेकंड कैंडिडेट का हो जाएगा। जी नुसरत, स्टार्ट करें। ठीक है। I am Dr. Nusrat. I have read the scenario. I am ready for the structured discussion. After mutual introduction and confirming the detail of the patient, I will ask the name of the patient, age, and parity, and occupation of the patient, and since how and her parity and last menstrual period. And then I will take focus history from the patient, that from since how long she is having this problem, and onset course and duration of the disease, and which medication she is using, either oral hypoglycemic agents or insulin, and whether her sugar is controlled or not. And I will ask about any complications like polyuria, polydipsia, and recurrent UTIs, and any numbness in the hands and foot. And if the patient is taking insulin, then I will ask about also sweating, palpitation, and tremors. Then I will ask about any other concerning medical history, like hypertension, anemia, any kidney disease, and I will ask about any surgical history and any drug allergy, any drug history, any drugs taken, any drug allergies, and I will also ask about the family history, family history, and how is her support at home. And then I will ask about the patient about the current pregnancy, and that whether she is sure of her dates, and she took folic acid intake during first trimester, and any investigations done or not. And then I will any investigation and any dating scan done or not. And then I will ask from the patient that she has done any anomaly scan, and when quickening has been started, and any blood test has been done in the second trimester, and there is any history of bleeding and vaginal discharge. And then I will ask about the fetal movements, and I will ask about the growth of the baby, and that her belly is increasing according to the gestation or not. And also I will ask about the patient about the blood group. And she's and then I will thank to the patient for giving the all information, and then I will do the examination of the patient. Ma'am, should I proceed? आपने 10 मिनट्स में बताना है सारा जी, 3 मिनट्स हो गए। Then I will नहीं do the सॉरी, आपके हुए then हैं 5 मिनट्स हो गए हैं जी। Then I will do the general physical examination of the patient, BMI, vitals, BP pulse, temperature, respiratory rate. I will do the thyroid examination and abdominal examination. In the abdominal examination, I will check the symphysiofundal height, and I will check the symphysiofundal height, lie and presenting part of the baby, amount of the liquor, estimated fetal weight, and fetal heart rate. And then in the and then I want the investigation of the patient. First of all, general for the general well-being of the patient, baseline investigation including blood group and CBC, HB, and TLC platelet count, and our viral markers, and random blood sugar levels, and urine complete examination. In the specific investigation, I want OGTT, values of OGTT, and HbA1c. Ma'am, you will give the investigations. ठीक है, ओके, आप क्या हो गया सारा बात पूरी? जी। ठीक है, अच्छा, दो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगी। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो ये वो सिनेरियो है या ये वो स्टेशन है जिसमें यू हैव टू परफॉर्म एक्स्ट्रॉर्डनरी। अगर आप एक्स्ट्रॉर्डनरी, क्योंकि हर कोई इसमें परफॉर्म बुरा नहीं करेगा, एवरेज हर कैंडिडेट करेगा, एवरेज परफॉर्म करने वाले विल नॉट पास।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले पास के पास आएंगे, और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले को ज्यादा, वो जो एक आधा होता है जो बहुत ही अच्छा स्कोर करते हैं। सो आपने इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का टारगेट करके जाना है ताकि एटलीस्ट पास हो जाए। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बात ये है कि देखो, अब ये जो एग्जाम है, मैं अपनी अक्सर क्लास में ये कहती हूँ कि दिस एग्जाम इज एक्चुअली द एग्जाम ऑफ योर नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड। नॉलेज का एग्जाम तो आप दे आए हो रिटर्न में, लेकिन फिर भी हर स्टेशन में आपका नॉलेज स्किल और एटीट्यूड असेस हो रहा है इक्वल वेटेज पे। अब इस किस्म के सिनेरियोज में शायद स्किल का तो इतना काम नहीं है, लेकिन नॉलेज और एटीट्यूड 50-50% असेस हो रहे हैं। अब एटीट्यूड का मतलब देखो, सिर्फ यही नहीं है कि आप पेशेंट से बात कैसे कर रहे हो, या यू नो यू हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर एग्जामिनर। इसका तरीका ये भी है, इसका मतलब ये भी है कि आप किस तरीके से अपने पूरे सिनेरियो को लेकर जा रहे हो और किस तरीके से एग्जामिनर को बता रहे हो। हाउ आर यू अप्रोचिंग द पेशेंट। आपने स्टेप वाइज एक सीक्वेंस में ही लेके चलना है चीजों को। आस्किंग अबाउट द ब्लड ग्रुप ऑल ऑफ अ सडन इन अ हिस्ट्री व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लिकेशंस makes no sense actually. It's not just excuse me covering the points, पॉइंट्स कवर करना, नॉलेज होना, ये सारा आपका असेस हो गया रिटर्न में। अब आप इन सब चीजों को कंपाइल कैसे कर रहे हो और प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, इसकी इक्वल वेटेज है। मेरा तो ख्याल है इसकी इक्वल वेटेज है नॉलेज से। जो बंदा सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करेगा, जिस जो कॉम्प्लिकेशंस को पिक करेगा, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ चलेगा, ओनली दैट पर्सन कैन पास द एग्जाम। इसीलिए तो इतना मुश्किल है इसको पास करना, वरना टॉपिक्स तो गिनती के 4-5। और बल्कि शायद एमबीबीएस फाइनल ईयर में आपने हजारों ज्यादा चीजें की उस टाइम पे, लेकिन वहां पे पास हो जाना फिर भी था। लेकिन इसमें तो पास ही नहीं होते, हालांकि शायद अगर ओवरऑल टॉपिक्स का नंबर काउंट किया जाए तो 10% भी नहीं है उसके जो आपने पहले किया हुआ। लेकिन फिर भी इसमें इसीलिए क्योंकि इसमें आपने वही चीजें सेंसिबली पिक करके उसको हाईलाइट करना है टाइमली, उसको उसी तरीके से आपने लेके चलना है कि जैसे आपने प्रेजेंट करना है, ताकि एग्जामिनर को भी वो सारी हिस्ट्री और उसका पता चले ना। व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ योर 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 देखो, हाउ आर यू, आपकी जो ओपनिंग स्टेटमेंट्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से एग्जामिनर या जाग जाएगा या सो जाएगा। आपने स्टार्ट करना शुरू किया उसकी पैरिटी से, मैंने ये बात लिखी भी है, एज की बात की पैरिटी, ये तो दिया हुआ है सिनेरियो में। ठीक है, उसकी उसकी पैरिटी दी हुई है, शी इज ग्रेविड 3 para 2, एग्जामिनर नेवर वांट्स टू रिपीट थिंग्स फॉर यू, ओके। नो वन इन द वर्ल्ड वांट्स टू रिपीट थिंग्स एक्चुअली। तो ग्रेविडा 3 para 2 है, तो आपको वो चीज तो पता होनी चाहिए। उसके अलावा ये कि आप कहो कि स्पेसिफिक मुझे ये बायोडेटा में चाहिए, एंड देन टॉकिंग अबाउट आई विल थैंक पेशेंट फॉर गिविंग दिस इन्फॉर्मेशन। मतलब डोंट टॉक नॉनसेंस इन एग्जाम। मतलब ये बातें, ये तो नहीं कोई बातें करने वाली ना, आप क्लास 2 के एग्जाम में तो नहीं बैठे हो कि आप बैठ के बता रहे हो कि मैं थैंक करूंगी, मैं ये कहूंगी, मैं वो कहूंगी। आपने एक भी चीज उल्टी फुल्टी या एक्स्ट्रा नहीं बोलनी वहां बैठ के, ठीक है। आपने ठीक है, इफ यू वांट टू से कि मैं ये हूँ एंड आई स्टार्टेड लाइक दिस, इट्स ओके, बट आपने उसको जो जो ऑथेंटिक जो सही बातें हैं वो तो बोले ना पहले। सो आपने बायोडेटा में से उसके बाद फिर ऑल ऑफ अ सडन आप बोलते बोलते एकदम से पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉली पॉली पे आ गए। Normally, when we talk about history, or when we present our history, we talk in non-medical terms. हम कहते हैं increased urinary frequency of urination, और increased thirst, delayed wound healing, etc., etc. हम इस तरह की बातें करते हैं instead of using medical terms. तो वो आपने वो उस तरह नहीं करना। और फिर सीक्वेंस में आपने कहा कि मैं ये एलएमपी पूछूंगी, मैं वो पूछूंगी, उसके बाद आपने कहा कि मैं पता नहीं उसकी ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज पूछूंगी और थिंग्स लाइक दैट। आपने खुद मुझे सिनेरियो दिया कि शी हैज प्रेजेंटेड विद डीरेज्ड ब्लड शुगर लेवल्स। तो डीरेज्ड ब्लड शुगर लेवल्स अभी आए तो ओके, यू कैन आस्क सिंस व्हाट टाइम और सिंस व्हेन शी नोस के उसके डीरेज्ड ब्लड शुगर लेवल्स आ रहे हैं, और उसके लिए उसने अब तक क्या किया। अगर आपने स्टार्ट उसी से करना है, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट के अदर शी इज क्रॉनिक डायबिटिक और नॉट, पहले से थी या नहीं थी, और अब उसका तो आपने कुछ भी चीज सिनेरियो के हिसाब से नहीं बोली एक्चुअली, आपने सिर्फ डायबिटीज के हिसाब से बातें बोली, जो बिल्कुल ठीक नहीं बात। आपने सिनेरियो को लेके चलना है, आपको एक सिनेरियो मिला है, उसके बाद आपने नॉर्मली मैंने लास्ट पिछली क्लास में उसकी वीडियो भी है, अभी मैंने अपलोड करनी है, इसके साथ ही अपलोड कर दूंगी। उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि हिस्ट्री किस तरह से लेनी है, और हिस्ट्री के अंदर आपने उसी तरीके से पॉइंट्स लेने हैं कि इफ यू टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट प्रॉब्लम उसके सॉल्व करने के लिए क्या किया, उसके बाद उसके प्रेजेंट मसाइल क्या है उस प्रॉब्लम के, जिसमें इंक्रीज यूरिनेशन और वो सारा आ जाएगा।
उसकी इम्प्लीकेशन ऑन मदर एंड फीटस, और फिर ये कि वो प्रॉब्लम उसमें हुई क्यों, व्हाट वर द रिस्क फैक्टर्स, उसकी फैमिली हिस्ट्री थी, उसके प्रीवियस प्रेगनेंसीज में थी क्या उसके, और इफ शी इज ग्रेविड 3 para 2, यू हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल कि कोई मैक्रोसोमिया, कोई पॉली, या कोई और, या कोई डायबिटीज, मतलब पिछली प्रेगनेंसीज की डिटेल्स ज्यादा, क्योंकि नॉर्मली इट इज रिकरिंग। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री तो आपकी पूरी की पूरी, एक्चुअली अगर आप गौर से सुनो तो मे बी लारिफ यू हैव नॉट वाला मिस्ड एनीथिंग, बट वो फिर भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत हैफेजर्ड थी। और उसके अंदर लारिफ एक तो वाला मेडिकल लारिफ टर्म, वाला देखो सॉरी आई देखिए, म्यूट एवरीवन, देखो आप लोग लारिफ खुद वाला भी अपना पूछो, देख अस्सलाम लो कि आप लोग अगर म्यूट हो तो, नहीं अनम्यूट हो तो फिर म्यूट हो जाओ, ठीक है। सो दैट, और जिसने फिर कुछ क्वेश्चन करना है तो वो खुद अनम्यूट होकर कर सकते हैं। सो आई वाज टेलिंग कि आई थिंक हिस्ट्री अगर और से सुने तो शायद नुजरत का पॉइंट कोई मिस नहीं था, बट फिर भी ये बिल्कुल पास होने वाली हिस्ट्री नहीं थी। आपको इसको ज्यादा स्ट्रीमलाइन करना है, अभी खैर टाइम भी है एग्जाम में, अभी आप कर भी सकते हो इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से, और आइदर यू कैन स्टार्ट विद द प्रीवियस प्रेगनेंसीज, और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस प्रेगनेंसी एंड टॉक अबाउट प्रीवियस प्रेगनेंसीज लेटर। लेकिन प्रीवियस प्रेगनेंसीज का बहुत लिंक इसके साथ बनेगा, क्योंकि उसमें हो सकता है कोई मैक्रोसोमिया और कुछ और हो। उसके बाद नॉर्मली, उसके बाद रिस्क फैक्टर्स ऑफ डायबिटीज, व्हाई शी हैड डायबिटीज। उसके बाद आपने थोड़ा सा ये भी लिखना है कि, ये भी बोलना है वहां पर कि बिकॉज डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर भी एसोसिएटेड हो सकता है, माइक्रोवास्कुलर डिजीज की चेंजेस आ सकती हैं, तो क्या ब्लड प्रेशर का भी साथ में रिकॉर्ड चल रहा है या नहीं चल रहा, वो सारा कुछ ठीक है। और फिर देन यू टॉक्ड, बीच में मैंने, क्योंकि बड़े गौर से आपकी हिस्ट्री भी सुनती रही, क्योंकि मुझे, मैं चाह रही थी देखूं कि कितनी तो स्ट्रीमलाइंड है। आपने बीच में पहले बोल दिया कि रिसेंट स्कैन हुआ, उसमें बेबी का साइज ये वो, और फिर आगे जाके फिर वो बातें कर रहे हो कि इंक्रीज्ड गर्थ तो नहीं लग रही, उसकी गर्थ उसके टाइम के हिसाब से बढ़ती लग रही है। सो यू आर नॉट सिटिंग देयर टू कवर ऑल द पॉइंट्स, यू आर सिटिंग टू मेक सेंस, आपने वहां पे सेंस बनाने के लिए बैठे हो। वरना डायबिटीज में आप पास होके आए हो एग्जाम, क्योंकि आप रिटर्न पास करके पहुंचे हो एक्सटेंडेड टॉक्स में, और ना एवरीवन नोस कि कि इसमें मैक्रोसोमिया हो सकता है, तो उसको गर्द ज्यादा फील हो, लेकिन उसको अब आपने अप्लाई करना है पेशेंट पे और प्रेजेंट करना है वहां पे सेंसिबली, उस चीज के लिए आप वहां पे हो, ठीक है। तो आपने इसको प्लीज ठीक करो। देन एग्जामिनेशन, ठीक है मैम। एग्जामिनेशन के अंदर यू वर फाइन, मतलब इन अ वे कि आपने जनरल फिजिकल की बात तो की, लेकिन ऑब्वियसली एब्डोमिनल एग्जाम ने हमारा फोकस जो है वो हमारा obstetrical एग्जामिनेशन है उसमें, ठीक है। बट यस, अगर आप उसके अंदर अमाउंट ऑफ लाइकर पे, मैंने शायद गौर से नहीं सुना, उसमें अमाउंट ऑफ लाइकर पे अलग से कमेंट करो, उस पे पैल्पेबल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पे जरूर अलग पे से कमेंट करो, तो वो चीजें वो थोड़ा सा हो जाएगा। मैम अमाउंट ऑफ और लाइकर पे मैंने किया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शंस का नहीं बताया। वो इसलिए क्योंकि नॉर्मली अगर पॉली की तरफ हो तो फिर कॉन्ट्रैक्शंस का भी होता है, तो हर पेशेंट में आप कर दो कि नो पैल्पेबल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो वो भी ठीक होता है। अच्छा, उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशंस में बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं मांगा। बेसलाइन तो जो थी सो थी है, उसके बाद जब आपने स्पेसिफिक मांगी तो पेशेंट हैज ऑलरेडी प्रेजेंटेड विद डीरेज ब्लड शुगर लेवल्स, उसके अंदर आप ओजीटीटी या तो अभी का मांग रहे हो, अगर पहले का मांग रहे हो तो आप कहो कि मैं 28 वीक्स या 26 वीक्स का ओजीटीटी अगर हुआ हुआ है तो दे दे, या पहले कोई शुगर लेवल या मतलब कुछ उसका स्पेसिफाई कर देते। मुझे ये लगा कि पहली डी रेंज ब्लड शुगर लेवल्स के साथ उसने प्रेजेंट किया, तो अब आप उसका ओजीटीटी करा रहे हो। HbA1c, चलो देन यू डिड नॉट टॉक अबाउट RFTs, LFTs एंड फंडोस्कोपी, ECG। तो और फिर देन 6 ब्लड शुगर लेवल्स, कोई ट्रीटमेंट टिकट, शी इज एट 32 वीक्स, यू डिडंट टॉक अबाउट डेक्सा कवर, और चलो ट्रीटमेंट टिकट में ही बोल देते कि डेक्सा का कहीं मेंशन है या नहीं। एंड देन शी इज एट 32 वीक्स, कोई फीटल के काउंट चार्ट, कोई CTG, कुछ चीज, मतलब आपने कुछ भी नहीं एक्चुअली मांगा। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसको दोबारा से प्रिपेयर करने की जरूरत है। प्रिपेयर्ड हो, यू नो द थ्योरी बिकॉज यू वर नॉट मिसिंग पॉइंट्स, बट इसको अब आप इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करो अपने हर टॉपिक को, जैसे पिछली क्लास में मैंने कहा था, मेरे बहुत सारे और लेक्चर्स में भी, इवन सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ पार्ट 2 के भी लेक्चर्स में है कि आपने हर टॉपिक की तैयारी कैसे करनी है, उसकी हिस्ट्री आपने किस तरह से पॉइंट्स के हिसाब से स्ट्रीमलाइन करनी है, क्योंकि इस वक्त भी इवन आप बोलते हुए भूल जाते हो, लेकिन एग्जाम में तो वैसे ही उस वक्त सोच के कुछ याद नहीं आता, तो आपके फिंगर टिप्स पे होगा ही तो होगा। तो ये आपने करना है, ठीक है। सो इसमें कोई सीन है, कोई क्वेश्चन या कुछ और ऐड अब तक करना है तो वो कर लें, फिर हम इसकी मैनेजमेंट करेंगे क्विकली, ठीक है। गुड। सो नुसरत, अब आप लेट्स मैनेज द पेशेंट, आई गिव यू द इन्वेस्टिगेशंस में आपको बाकी सब नॉर्मल है, HB एवरीथिंग इज नॉर्मल, और आपको क्या चाहिए, OGTT इज नॉट डन, HbA1c इज नॉट अवेलेबल। ओके।
मैम 6 लेवल गुड। इसके 6 पॉइंट तो ब्लड सिक्स शुगर लेवल्स लेवल। आप ले लो। 6 लेवल्स आर, उसमें क्या क्या चाहिए आप पूछते जाओ, मैं देती जाऊंगी। मैम फास्टिंग ओके। फास्टिंग एंड इज 95। एंड 1 hour आफ्टर फास्टिंग 180। एंड प्री मील, लेवल ऑफ प्री मील। फ्री लंच जो उसका है वो है 120। अच्छा, और पोस्ट लंच 200। 120। मैम प्री डिनर पोस्ट लंच 200 है, प्री डिनर 140 है। एंड पोस्ट डिनर 240। ओके। एंड शी इज मैम प्रीवियस टू सॉरी, सिजेरियन सेक्शन। मोड ऑफ डिलीवरी भी पूछा जी। प्रीवियस टू सिजेरियन सेक्शन। प्रीवियस टू विद फर्स्ट आईयूडी, वन अलाइव है। ओके मैम सॉरी, फास्टिंग प्लीज मुझे जरा दोबारा बता दें। 90। 95। 95। Fasting is 95. 1 hour post breakfast is 180. Pre lunch ओके 120. Post lunch 200. Pre dinner 140. Post dinner 240. ओके मैम। Ma'am, as my patient is presented with deranged blood sugar levels, I will admit the patient and I will counsel the patient regarding diagnosis आपको that she और भी अभी has इन्वेस्टिगेशन चाहिए? सॉरी, अभी आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई। मैंने Mhm. अल्ट्रासाउंड तो नहीं बताया आपको। बिफोर जी मैनेजिंग फास्ट पेशेंट विद डायबिटीज इन प्रेगनेंसी यू नीड अल्ट्रासाउंड। पता नहीं कोई सिक्स कॉम्प्लिकेशन हुई पॉइंट हो ब्लड कुछ। शुगर levels and recent ultrasonography. Good. So ultrasound उसका is corresponding to her dates. 32 weeks amount of Liger is fine. ठीक है, चलिए अब आगे बताएं। मैम ईसीजी फंडोस्कोपी, वो इससे सब पहले ठीक है। एलएफटीज आरएफटीज। ठीक है, ठीक है, वो नॉर्मल है, आप आगे मैनेज करें। ओके, thank you, ma'am. Then I will counsel the patient regarding the diagnosis that um, she has gestational diabetes mellitus, and I will counsel the patient regarding fetal-maternal risk, including increased risk of miscarriages and increased risk of dysfunctional labor, preterm labor, and shoulder dystocia, and increased risk of operative delivery, and increased risk of आपके पास operative 3 मिनट्स हैं, आपने delivery. मैनेजमेंट बोलनी है नुजर। PPH and in fetal, there are fetal risk. There is increased risk of stillbirth and congenital anomalies in stillbirth, and then I will counsel the. Then I will involve the multidisciplinary team, including my senior obstetrician and endocrinologist, anesthetist, and pediatrician. I will admit the patient and will do the as BSL levels are given to me. I will do the BSL monitoring and I will give the I will start the insulin as blood sugar levels are deranged, and then I will counsel the patient regarding diet and exercise also, and I will keep her strict. I will keep maintain the strict glycemic control, and I will keep her records and strict glycemic control, and I will advise the patient. I will advise the patient she should have frequent antenatal visits, and from the 28 to 36 weeks, I will do the growth scans, including growth scans and amniotic fluid volume assessment to pick up the polyhydramnios and macrosomia, and then at 36 weeks, I will discuss the time and mode of delivery, and also analgesia and after delivery care of the baby and ठीक है। involvement of the pediatrician. हाउ विल यू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल्स? आपको दिए हुए हैं, क्या क्या करेंगे? जी मैम, I will start the insulin as blood sugar level are deranged. I will start insulin to the patient according to व्हाट the इंसुलिन? हाउ व्हाट, कितने यूनिट? कौन सी इंसुलिन प्रॉपर आप बताओ I ना। will start the insulin according to the I will calculate according to the Carol G regime, and
by which I will point डू 9 दैट। multiply by आपने मुझे यूनिट्स बोलने हैं, मुझे फॉर्मूला नहीं, आपने बस मैनेज करना है पेशेंट। ओके। okay, and then I will give the insulin according to the biphasic regime, in which I will divide the total units divide the total आप units इंसुलिन का नाम बोलो और यूनिट्स बोलो बस। आप वार्ड में राउंड कर रहे हो, आपके सामने ये लेवल्स है, आपने क्या regular ऑर्डर दिया? insulin. Okay. Ma'am, actually there are two ways by which insulin can be given. Basal bolus मैंने कहा है regime. आपने वेज नहीं बताया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थ्योरी, आई एम जस्ट सेइंग यू आर डूइंग राउंड इन योर वार्ड, ठीक है, एंड यू हैव टू मेक द योर जूनियर राइट डाउन योर ऑर्डर्स। व्हाट ऑर्डर्स विल यू गिव, व्हाट यूनिट इंसुलिन, कौन सी इंसुलिन, दैट इज इट, बस ये Okay. बताओ। Ma'am, I will give the regular insulin 3 times a day. यूनिट। I will 10 units ठीक है। and also 10 कंसिडरिंग units हाउ BPH. आपने कितना वेट बनाया पेशेंट का, 70 kgs फॉर एग्जाम्पल वेट है। जी मैम. हम्म, और 10 आपने रेगुलर दी। जी मैम. हम्म। 3 times 10 units and also 10 units at NPH at bedtime. ठीक है, एंड देन व्हाट विल यू डू? And then I will keep the record of the blood sugar levels, either sugar levels are controlled or not. And also I will give the dietary advice to the patient and counsel about the exercise also. अच्छा देखो, मेरी बात सुनो नुजरत, इट्स नॉट लाइक दैट एक्चुअली। आपने पहले तो ठीक है स्टार्ट किया, यू डिड काउंसलिंग व्हिच वाज वेरी वेल, एंड यू सेड कि दैट्स व्हाई आई एम एडमिटिंग द पेशेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स बिफोर एनी कॉम्प्लिकेशंस अकर। चलो ठीक है, आपने मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स, उसके बाद आपके आप खुद से बोलो ना, आपको जब लेवल्स दिए ही इसलिए हैं, इसलिए तो नहीं दिए कि आप सिर्फ एक 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 मैप ऑफ माइंड मैप हमें बता दो कि मैं इस आउटलाइन के मुताबिक मैनेज करूंगी पेशेंट। आप बेशक वो आउटलाइन 2-3 लाइंस में बोल दो, टेकिंग हार्डली 30-40 सेकेंड्स, क्योंकि देखो एग्जाम के अंदर टाइम जो है ना वो भी एक बड़ी की चीज है। आप यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लिकेशन दैट कैन अकर, आपने आगे चलना है, आपने उस चीज को इस तरीके से नहीं जी. फिर फौरन लेके जाना। साइमा में बात सुनती है, पहले मैं बोल लूं फिर उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। सो आपने पहले तो चलो अगर माइंड मैप आपने बोल दिया तो, बट आपको कोई वजह है 6 लेवल्स दिए हुए, पेशेंट इज इन योर वार्ड, एंड नाउ यू हैव टू मैनेज हर अकॉर्डिंग टू द ब्लड शुगर लेवल। सबसे पहले आप देखो, आप कहो, आप पेशेंट को भी बताओ, आप एग्जामिनर को भी बताओ कि ऑल ऑफ द पोस्ट प्रेंडियल लेवल्स आर नॉट सेटिस्फैक्टरी, नंबर वन। नंबर टू जी. ये कि मेरा टारगेट है टू कीप दीज पोस्ट प्रेंडियल लेवल्स बिलो 140, राइट। जी. नंबर थ्री ये कि आई वुड लाइक टू सी व्हाट शी इज हैविंग इन ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। क्या पता वो रोज हर हर मील में एक मिठाई का पीस खा रही है, राइट। अगर तो वो हर मील में मिठाई का पीस खा रही है और वो मिठाई का पीस ही खत्म हो जाएगा, तो शायद उसको सिर्फ वॉक डाइट से ही बात चल जाए, बेहतर हो जाए, क्योंकि अभी तक बीबी की कोई कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हुई ना स्कैन पे। या फिर ज्यादा से ज्यादा ओरल हाइपोग्लाइसीमिक से ही बात बन जाए, इंसुलिन की जरूरत ही ना पड़े। सो यू नीड टू डिस्कस विद हर, नंबर वन डाइट, नंबर टू वॉक, या एटलीस्ट 30 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 30 एट नाइट, 1 आवर की वॉक किसी तरह डिवाइड करिए, या 10 मिनट्स आफ्टर एवरी मील करके करे। सो वॉक की इंपॉर्टेंस के किस तरह है, डाइट की इंपॉर्टेंस, बेटर इफ यू कैन डिस्कस इन टर्म्स ऑफ नंबर किलो कैलोरीज पर डे दैट पेशेंट नीड्स, इन टर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइट तो बहुत अहम है एक डायबिटिक पेशेंट से डिस्कस करना, कि Hmm. कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स, कितने परसेंट फैट, कितने परसेंट प्रोटीन, 60-20-20 का कार्ब्स 60 है, प्रोटीन 20 है, तो फैट्स 20%। तो उस तरीके से डिस्कस करना है। उसके बाद आप उसकी एक्सरसाइज, कितनी एक्सरसाइज, इफ एनीवन टॉक्स इन किलोमीटर्स, इफ एनीवन टॉक्स इन देन मिनट्स, इतने मिनट्स पर डे करे, वो भी बेहतर, क्योंकि ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने अगर इंसुलिन आफ्टर दैट, इवन आफ्टर ऑल दैट अभी भी लेवल ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर यू कैन स्टार्ट हर विद इंसुलिन। इंसुलिन की देखो 2-3 चीजें हैं, देर इज नो हार्ड एंड फास्ट के इतने केजी का इतना दे दो। एक एक जैसे अभी नुजरत ने फॉर्मूला बोला, 0.7, 0.8, 0.9 मल्टीप्लाई बाय एक्सक्यूज मी वेट ऑफ द पेशेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर। आप उस हिसाब से 2/3 1/3 रिज्यूम करके भी दे सकते हो। बायफेजिक का ये मतलब होता है, लेकिन आपने बायफेजिक दी नहीं,
आपने तो रैंडम ये रैपिड जो है वो टीडीएस में दी, और आपने फिर लॉन्ग एक्टिंग दे दी रात में। इट वाज नॉट बायफेजिक। बायफेजिक का मतलब होता है सुबह शाम, यानी टू थर्ड सुबह, वन थर्ड शाम को। और उसमें भी फिर शॉर्ट एक्टिंग को आप करते हो, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग में करते हो कि शॉर्ट एक्टिंग की आप वन थर्ड और लॉन्ग एक्टिंग की टू थर्ड देते हो। बायफेजिक वो रिजीम होती है, ठीक है। आपने दी है रैपिड टीडीएस में बेजल और फिर बोलस। लॉन्ग एक्टिंग रात में। जी। तो विच इज ऑल्सो फाइन, बिकॉज अगर आप अपने डिपार्टमेंट्स में इस तरह दे रहे हो तो ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगेन सिर्फ ये जो फॉर्मूला है 0.7 0.8 0.9 वाला, इसके साथ साथ हम्म। लेवल्स ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स भी तो मैटर करते हैं ना। अब किसी के अगर बहुत ज्यादा आ रहे हो और आप इस फॉर्मूला के मुताबिक ही रहो, आपको थोड़ा सा करना होता है। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा लेवल्स भी नहीं थे, इसलिए आपने एग्जैक्टली क्योंकि अगर आप 0.9 को 70 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे ख्याल है 60-65 तो आंसर आता है। बट हम्म। आपने पूरे दिन में उसे इंसुलिन 40 दी है, बिकॉज इसके बहुत हाई लेवल्स नहीं थे। तो ये आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो ब्लड शुगर लेवल्स के हिसाब से भी। और इवन एट टाइम्स इफ यू आर प्लानिंग टू गिव हर डेक्सा कवर, उसके हिसाब से कई दफा स्लाइडिंग स्केल ऐड हो जाता है, कई दफा उसमें आपका ऐड हो जाता है, क्या से कहते हैं, 20% वैसे ही आप बढ़ा, जैसे डेक्सा देने लगे हो पेशेंट को और पेशेंट 10 टीडीएस रैपिड ले रही है और एनपीएच रात को 8 ले रही है, तो आप 20% ऑफ द होल डे इंसुलिन वैसे ही बढ़ा देते हो कि चलो उसको 12-12 यूनिट्स कर दो और रात वाले को भी 12 कर दो और फिर आप उसको दे दो डेक्सा कवर, ताकि आपको स्लाइडिंग स्केल पे चेंज ही ना लाना पड़े। तो अकॉर्डिंगली आप उस तरह भी कर सकते हो। बट द मेन थिंग इज कि आपने सबसे पहले तो काउंसलिंग अबाउट डाइट एंड एक्सरसाइज एंड ओरल हाइपोग्लाइसीमिया, आपने स्टेप वाइज मैनेजमेंट को लेके आना है, ठीक है। और इंसुलिन में देन यू हैव टू नो एग्जैक्टली कि अगर आप आजकल तो वैसे नोवा रैपिड और इसका बहुत है, लेविमर का बहुत ट्रेंड हुआ हुआ है। बट इवन देन इफ यू यूजिंग रैपिड इन एनपीएच, वो भी बहुत अच्छी है, उस तरह कर लो। कुछ लोग 70-30 का करते हैं, वो मुझे इतना नहीं पता, मेडिसिन वाले कर रहे होते हैं। अगर आपको 70-30 का इस्तेमाल पता है वो कर लो, जिस जो आप यूज कर रहे हो, जो एग्जाम में जो अपने वार्डों में कर रहे हो वही करो, जो अपनी प्रैक्टिस में कर रहे हो। बिकॉज उस चीज को आप लेकर भी इजीली चलोगे और उसको जस्टिफाई करना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से, एंड देन यू विल टेक हर टू टर्म, एंड देन उसके बाद हमारा बस 1-2 मिनट ही रह गया नुजत के साथ, फिर हमने मदिया का केस करना है। तो नुजत फिर आप बताओ एट टर्म व्हाट विल यू डू, हाउ विल यू डिलीवर हर, और वो सारा क्विकली बता दो 1 मिनट में। जी मैम। डिलीवरी का बताओ, डिलीवरी की मैनेजमेंट। जी मैम, at 36 weeks I will give the steroid cover to the patient by increasing नॉट the dose of नेसेसरली insulin. 36 वीक्स, देखो ये कहीं हार्ड एंड फास्ट लिखा नहीं हुआ, इवन एट 32 और 34 वीक्स ऑल्सो यू कैन गिव। चलो आपने 36 वीक्स, क्योंकि 36 वीक्स पे जाके फिर उसकी एकदम से बहुत ज्यादा डीरेंज हो जानी है शुगर डेक्सा को के जी। साथ। सो देर इज नो हार्म कि अगर अभी 32 पे आपने एडमिट भी किया हुआ है, चलो शुगर ठीक। लेवल्स ठीक करके 34 वीक्स पे जब ठीक शुगर लेवल्स के साथ आई है तो आप उसको डेक्सा कवर दे दो विद। लेकिन ओके। उसमें भी दो चीजें आप देखोगे डेक्सा कवर में, एक तो कंप्लायंस ऑफ पेशेंट, उसकी इंटेलिजेंस लेवल क्या है, कि वो किस तरीके, क्या डेक्सा के साथ घर में शुगर लेवल्स भी मॉनिटर कर सकती है और क्या वो खुद इंसुलिन लगा सकती है, नहीं तो डेक्सा के लिए आप फिर एडमिट करोगे पेशेंट को, मैम जी ठीक है मैम, ना। फॉर दिस डेक्सा कवर आई विल एडमिट द पेशेंट। चलो आप टर्म पे आ गए, एंड डिलीवरी पे बताओ, मैनेजमेंट ड्यूरिंग डिलीवरी। जी मैम, मैनेजमेंट ड्यूरिंग डिलीवरी, इंट्रा ड्यूरिंग द इंट्रापार्टम केयर आई विल keep record of the blood sugar levels every 1 to 2 hours, and I will monitor the blood glucose level and keep around 4 to 7 हम्म millimole per liter. आपने सिर्फ ये And बात नहीं करनी नुसरत, सॉरी, एक्सक्यूज मी, आपने सिर्फ ये बात नहीं करनी कि मैं उसका मॉनिटर करूं, आप अपने टारगेट लेवल्स बोलो। व्हाट इज द, आप देखो, आप प्रैक्टिकल बात करो, आप अपना माइंड मैप सिर्फ ना हमें बताओ। यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द माइंड मैप कि मेरा ये होगा कि मैं उसके मॉनिटर करूंगी, उसका लेवल ठीक होगा, बट व्हाट इज द ठीक लेवल फॉर यू, व्हाट इज योर टारगेट। अनीमिया की बात कर रहे हो तो व्हाट इज योर टारगेट टू गेट टारगेट ऑफ दैट पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन। डोंट से दैट आई विल करेक्ट, यस यू विल करेक्ट एनीमिया, ये कहना भी ठीक है, इट्स माइंड मैप भी बोल दो, बहुत अच्छी बात है कि पूरा माइंड मैप एग्जामिनर को पता चले, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करते हुए तो बोलो ना एग्जैक्टली कि आपका टारगेट क्या है उस चीज के लिए, उस चीज का टारगेट, यानी कि अगर इस वक्त वो 8 HB पे है, टारगेट आपका 10.5 या 11 है, तो आपको 3-4 यूनिट्स कवर करने हैं एंड यू हैव दिस मच ऑफ द टाइम। सिमिलरली इफ शी इज इन लेबर, व्हाट इज योर टारगेट ऑफ गेटिंग ब्लड शुगर लेवल, के इससे लो भी ना हो, इससे ज्यादा भी ना हो, और क्यों ना हो, मतलब टॉक लाइक दैट। जी। मैम 4 to 7 millimole per liter.
तो बोले ना, बिल्कुल। I will keep. I will. My aim is to achieve the blood glucose level between 4 to 7 millimole per liter, and I will monitor the blood glucose levels every 1 to 2 hours. And then I will. Ma'am, you have told the patient is previous to cesarean section. I जी will जी, do the अच्छा cesarean चलो ठीक है, वो section. तो सिजेरियन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। जी जी जी. हम्म। Ma'am, ठीक है फिर at तो ओके। 38 weeks हाँ। after Schweidt cover, I will do the cesarean section, and फिर also, and then after delivery, I will. बेबी। There should be pediatrician. There should be हम्म। pediatrician and senior obstetrician. And after delivery, I will do the heel prick test of the baby within 30 हील minutes, which प्रिक should नहीं, be बस ब्लड शुगर वो चेक करेंगे। हील okay. प्रिक Okay. करें या That वो should क्या be. करें, जो हम नहीं करते क्या Mhm. जिंदगी में कभी आपने किया, बेबी को देखा भी किसी को करते कि किस तरह वो शुगर चेक करते हैं? हैव यू सीन? इवन मैंने तो कभी देखा भी नहीं कि बेबी की शुगर कैसे चेक होती है। जिसका काम है बस उसको दो कि भी आप जी जस्ट जी टॉक अबाउट, इफ okay. यू वांट टू टॉक अबाउट द ब्लड शुगर लेवल्स ऑफ बेबी, दैट्स फाइन इनफ जी कि जी अगर हाइपोग्लाइसीमिया का चांस है, इस वजह से मैं पीडियाट्रिशियन को देके जी वो जी. हो गया हैंड ओवर, मदर की कब क्या करना है। And as the patient is of gestational diabetes mellitus, so I will stop the hypoglycemic agents immediately, and I will counsel the patient regarding the HbA1c level at 6 weeks, or also OGTT can be done. ठीक है, आप ये स्टेटमेंट भी बोल सकते हो कि एज इट वाज, इफ इट वाज जेस्टेशनल डायबिटीज मोर देन 99% Yes. मेरा ख्याल है, जेस्टेशनल Mhm. डायबिटीज कम्स बैक टू नॉर्मल लेवल इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। हाउएवर इसका मैं पोस्ट ऑप में इनिशियली few people check it every hour for the first 4 hours and then 3 times a day। तो टू कीप अ चेक कि इसको पोस्ट ऑप में तो नहीं चाहिए, और फिर 6 वीक्स के बाद आप HbA1c भी करा सकते हो, फास्टिंग ब्लड शुगर का एक लेवल भी करा सकते Fasting हो। blood sugar level and और HbA1c. HbA1c, ठीक है, चलो गुड। चलो अब मदिया की बारी है, जो चीजें हमने अभी कवर नहीं की डायबिटीज में नुसरत के साथ, वो विल ट्राई टू कवर इट विद मदिया। ठीक है मदिया, डू यू हैव अ जी केस या मैं दे दूं आपको? मैडम आप दे दो। So patient is gravida 2 para 1 with previous normal delivery, and she's at 30 weeks of gestation with increased fundal height of 34 weeks, and on scan also estimated on the recent scan estimated baby weight is 2 kg and AFI is 20. ठीक है, 20 centimeters. And now how will you evaluate? Assalamu alaikum. My name is Dr. Madhiya. I have read the instruction and ready for structured discussion. First of all, I will introduce myself to the patient after confirming her biodata, and I will take the focus history regarding her presenting illness. She came at 30 week of gestation with fundal height of 34 weeks. I will ask the patient. Regarding the previous mode of delivery, regarding the previous pregnancy. Does she have any history of gestational diabetes in the previous pregnancy? Or in this pregnancy, any testing done to rule out the gestational diabetes? Or I will ask the patient regarding the sorry madam, I will ask the patient कोई बात नहीं। regarding हम्म। I will ask the patient regarding the I will ask the patient regarding the fetal movements, and I will ask the patient, does she had anomaly scan done or not previously, or a report known to her or not, or any OGTT testing done or not to rule out the diabetes. Is there any previous medical history of diabetes, hypertension, thyroid disease, or any family history of the diabetes? Or I will ask the patient about the support at home. Then I will proceed for the examination. In examination, I will do the BMI. I will check the blood pressure, as blood pressure as it may be the risk of the PIH associated with GDM. Or I will ask the patient, I will check the Peller to rule out the anemia.
Then I will proceed for the per abdominal examination to check the symphysiofundal height, lie and presentation, and lie presentation, amount of Leica volume, and fetal heart sound present or not. Then I will proceed for investigations. In investigation, I want the baseline investigation, which include complete blood count with date, including hemoglobin, platelet count, and TLC count. And I want blood group with Rh factor, hepatitis B surface antigen, anti-HCV antibodies, and urine complete for pus cell proteins and glucose, and blood sugar random. And in specific examination, I want her OGTT level. If not performed, then any recent 6 level sugar profile. And I need RFTs and LFTs to see any complication. And I want the dating scan to see the to see the CRL, and any adnexal pathology, any adnexal pathology, as the patient has increased fundal height. And I want anomaly scan to see any gross fetal anomaly, and recent obstetrical ultrasound to see the fundal height, Leica volume, and fetal movements, and localization of placenta. चलो, that's good. और कुछ? Mm, So fine. So you were good. History में never वही बात मैं I will not repeat, लेकिन never forget कि आप इसके risk factors का जिक्र ना करो quickly, या फिर आप इसके present symptoms का, या and also try to assess the IQ level and compliance of the patient, कि वो कितना को diet को समझ सकती है और किस हिसाब से उस चीज को खुद मैनेज कर सकती है, क्योंकि अकॉर्डिंगली आपका एडमिशन का फैसला होगा. सो एग्जामिनेशन वाज फाइन, वो आपका ठीक था. और बाकी तो मैं बता चुकी हूँ नुज़रत के साथ भी वो सारी बातें, इन्वेस्टिगेशंस में भी. क्विकली अब हम इसकी मैनेजमेंट देख लेते हैं, ठीक है मतिया? सो हाउ विल यू मैनेज हर? मैडम पहले वो कोई इन्वेस्टिगेशंस. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन बाकी सारी तो ठीक है, बेसलाइन, ताकि मैं हम इसी पे फोकस रहे. इसके ब्लड शुगर लेवल्स अगर आपको चाहिए तो मैं 6 लेवल्स क्विकली बता देती हूँ. इसका फास्टिंग जो है वो है 125. हर 1 hour आफ्टर ब्रेकफास्ट इज 190. Pre-lunch is 140 and post-lunch is 240, and pre-dinner is 120 and post-dinner is 300. ठीक है? Yes, madam. And she is not taking any oral hypoglycemics or anything. It was her first visit with the ultrasound report that she came with. Yes, madam. First of all, I will counsel the patient regarding the diagnosis, that I will counsel the patient regarding the diagnosis that she have a gestational diabetes with complication like macrosomia. I will admit the patient as she has deranged blood sugar level. I will counsel the patient as the deranged blood sugar level have certain fetal-maternal risk, which include the maternal risk pressure symptom due to the polyhydramnios and the macrosomia, and third and fourth degree perineal tear due to the shoulder dystocia, and difficult delivery, and risk of the induction of labor, and risk associated with that, and preeclampsia, which has 16 to 20% risk, and risk of the operative vaginal delivery, and cesarean section, which have 67% chance. And Very good. fetal risk आपने include रिस्क the अच्छे बोले preterm ना, delivery, ऐसे नहीं and बोलना. preterm आपने delivery, रिस्क, and सॉरी मतिया, macrosomia, and shoulder dystocia, and risk associated with delivery of shoulders. Hello. हाँ आपकी थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम था. आप बहुत अच्छा बोल रहे हो. मैंने एक बात आपकी करेक्ट करनी थी. आवाज आ रही है? जी मैडम, अब आ रही है. हाँ. सो आई वाज ट्राइंग टू से कि आप बोल बहुत अच्छा रहे हो. इट्स रियली गुड दैट यू टॉकिंग अबाउट incidences and everything. Actually this is what we should do in exam.
एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे धड़ाधड़ बस आपने कॉम्प्लिकेशंस नहीं बोले, एक्चुअली पेशेंट के सामने भी, पहले आपने कॉम्प्लिकेशन बोल दी, हो गई है पेशेंट के साथ मैक्रोसोमिया, थोड़ा पॉली का, मदर को ये फिर उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कॉमन इस वक्त क्या है, शी इज एट 30 वीक्स विद मैक्रोसोमिया एंड सो मच डिलेड ब्लड शुगर लेवल्स, आईयूडी है। सबसे पहले इंस्टेड ऑफ टॉकिंग Unexplained IUD. shoulder dystocia, Unexplained IUD. talk about iron and cesarean and all that, talk about fetal anomaly। एक पेशेंट जिसका पहले कोई विजिट नहीं हुआ हुआ, अब कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज के साथ आ गई है आपके पास, तो क्या उसके बेबी में नॉर्मली के होने का चांस दिया है? हो सकता है बर्थ के वक्त नॉर्मली पता चल जाए, जो स्कैन पे नहीं आई हुई, पहले कभी उसने चेक नहीं कराया, नॉर्मली स्कैन उसके पास है नहीं, मैंने कहा पहला विजिट है उसके पास आपका, सो जी यू मैडम। नेवर नो के टॉक इस तरीके। अच्छी बात है आप ये सारी बातें बोल रहे हो, लेकिन इसका कोई सीक्वेंस सर पैर तो लगे ना। इट्स नॉट लाइक कि आपने बोला कि कॉम्प्लिकेशन तो हो गई है वो, और देन यू स्टार्टेड, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट शोल्डर डिस्ट्रोशिया एट दिस टाइम? पहले उसको आईयूडी का तो बताओ, उसको नॉर्मली का तो बताओ, और जी फिर मैम। और बात करो। तो शोल्डर डिस्ट्रोशिया क्यों के मतलब ये बड़ा तो आपने प्लीज इसकी काउंसलिंग एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ आर यू डूइंग इट, किस सीक्वेंस में लेके जा रहे हो चीजों को। और जब आप क्लिनिक पे बैठे हो गए अपने डिपार्टमेंट में, जब भी ओपीडी करो, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद द पेशेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहेगी कि अच्छा मेरा मैक्रोसोमिया हो गया, तो अभी 30 वीक्स में बैठ के शोल्डर डिस्ट्रोशिया की बातें हो रही है, जी उससे पहले मैडम। इसे आईयूडी का तो बताओ, इसे नॉर्मलस बेबी का तो बताओ, ठीक है? जी तो मैडम। ये इस तरीके से नहीं। अच्छा चलो, हो गई काउंसलिंग, आगे चले। Then I will involve the multidisciplinary team, which include the dietitian and diabetologist, pediatrician, anesthetist, and we as an obstetrician will be taking care of the patient. I will admit the patient as he has deranged blood sugar level, and I will I will counsel about the lifestyle modification and diet control, as 80% of the diabetes levels are controlled with the diet. I will I will explain her diet chart, and I will explain her that she should redistribute her meal in 3 main meal and 3 snacks. वेरी गुड। कट रही है, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी, कनेक्शन With वेरी गुड, last इस meal तरीके at the से जी। bedtime, and after every meal she walk. I will start her insulin. I will start her insulin under my dose. I will calculate the dose according to the body, according to her body weight, and I will start the insulin in basal bolus regime with 3 regular and 1 NPH at bedtime. My aim is to achieve the target values, which is fasting less than 95 and postprandial less than 140 milligram per deciliter, and to prevent the episodes of hypoglycemia and hyperglycemia. Once our blood sugar levels are controlled, I will discharge. मैडम आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो जी जी आ रही है आपकी आवाज, आप बहुत अच्छा बता रहे हो, मैडम, गुड। वो सॉरी लाइट चली गई है तो नहीं नहीं, मैडम वो आवाज आ लाइट रही है, चली गई है तो मोबाइल डाटा इस वजह से वो हो रहा है थोड़ा. कोई बात नहीं। I will target. I will once her sugar levels are controlled, I will discharge her home, and will call for frequent follow up on 2 to 3 weekly basis at as the patient is दीदी अच्छा बता रही है, लेकिन उसकी लाइट चली गई, मसला ये हो गया। अच्छा सो गुड। 2 weeks. I will reassess the patient at 36 weeks and discuss about the time of delivery, mode of delivery, contraception, breastfeeding, and neonatal admission due to the complication like RDS. Patient is on insulin. I induce her at 37/6. गुड, सो वेरी गुड। लेकिन मदिया, इसमें कुछ बातें मैंने आपसे पूछनी है, आई थिंक मदिया के कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया। दिस पेशेंट इज अ पेशेंट विद डायबिटीज विद कॉम्प्लिकेशन। मदिया ने बहुत अच्छा बोला है, आई थिंक काफी अच्छा पास होने वाला तो एटलीस्ट है, बट
इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि व्हेन यू आर मैनेजिंग, मे बी उसने बोला, उसकी आवाज बहुत कट रही थी, कि जब शुगर लेवल्स हैं तो इसमें टारगेट ब्लड शुगर लेवल बोलने हैं। शी टॉक्ड वेरी वेल अबाउट डाइट एंड एक्सरसाइज एंड देन अबाउट ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स अगर है तो, नहीं तो इंसुलिन तो इसमें होएगी बिकॉज ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन हुई हुई है और फिर भी इतने हाई लेवल्स है शुगर के। तो टारगेट ब्लड शुगर लेवल्स आर इम्पोर्टेंट, कि इसके अंदर उसके टारगेट ब्लड शुगर लेवल 1 आवर आफ्टर मील क्या होगा। वेरी फ्रैंकली मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि व्हेन देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन विद डायबिटीज इन अ पेशेंट, देन उसके अंदर अगर हमारा नॉर्मल विदाउट कॉम्प्लिकेशन वाले पेशेंट में 140 होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर 1 आवर आफ्टर मील का, तो इसके अंदर हम एटलीस्ट 120 से नीचे नीचे रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर मैक्रोसोमिया पहले ही डेवलप हो गया, यानी 30 वीक्स पे अगर 2 kg का बेबी आ गया, तो उसके ब्लड शुगर लेवल्स 120 के 110 से भी कम कम रहेंगे ही, तो उसका फिर ये मैक्रोसोमिया आगे ट्रीट होता जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसी तरह इफ अगर आप यू आर एबल टू अचीव दैट लेवल, तो फिर आप उसको नेवर से 2 to 3 वीकली, यू आर कॉलिंग हर बैक आफ्टर 2 वीक्स। आपका एग्जैक्ट, क्योंकि आप पेशेंट को ये नहीं कह के भेजते हो कि आप 2 से 3 हफ्ते बाद आ जाए। आप पेशेंट को एक डेट देते हो कि फर्स्ट को आप आए हो, अब आपने 14 को आना है मेरे पास, यानी 2 वीक्स हम उसे डेट बताते हैं। तो यू हैव टू बी क्लियर ऑल्सो इन एग्जाम के, आप कहोगे कि एग्जैक्टली 2 वीक्स के बाद मैं उसे रिकॉल करूंगी, रीअसेस जी करूंगी मैडम। सारा कुछ। और 2 वीक्स में आपने करना क्या है, यू हैव टू, आपने फीटस की क्या मॉनिटरिंग करनी है, आपने मदर की क्या करनी है। शी इज हैविंग पॉलीहाइड्रोएमनियोस एंड माइक्रोसोमिया। पॉली चलो 20 है, अभी तो उस तरह का पॉली तो नहीं डेवलप हुआ हुआ, लेकिन द लाइकर इज ऑन द हायर साइड एंड माइक्रोसोमिया। तो आपने सीरियल ग्रोथ स्कैन्स कराने यस हैं, मैडम। आपने इसका डॉपलर भी कराना है, आपने इसका AFI भी मेजर कराना है, ठीक है। तो वो स्कैन के साथ 2 वीकली आप उसको मॉनिटर करते हुए जा रहे हो। जी देन मैडम। आफ्टर ऑन एवरी विजिट, एज मदीहा सेड, कि आपने उसको रीअसेस करना है, आपने उसका हिस्ट्री दोबारा से देखनी है, कहीं कॉन्ट्रैक्शंस तो नहीं आ गई, उसको मूवमेंट का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, कुछ और तो नहीं हो गया। या कोई शुगर की वजह से मदर को तो नहीं कॉम्प्लिकेशन हो गई, लाइक वेजाइनल इन्फेक्शन या कोई और ऐसी चीज तो नहीं हो गई, UTI एक्सेट्रा। वो रीअसेस करना है। उसके बाद आपने उसका दोबारा BMI लेना है। मदर का वेट गेन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विद पॉली एंड मैक्रोसोमिया। फिर आपने वाइटल्स और एग्जामिनेशन के बाद इन्वेस्टिगेशंस में क्या देखना है, उसके ब्लड शुगर लेवल्स दोबारा से देखना है। एंड देन आपने उसका इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड, जैसे कि मैंने कहा, सीरियल ग्रोथ स्कैन, डॉपलर, एज वेल एज ये जो है अमाउंट ऑफ लाइकर, ठीक है। और उसके बाद आप उसको फिर आगे लेके जाओगे 2 वीकली विजिट्स के बाद 36 वीक्स पे, जैसे मदिया ने बताया। मदिया उससे आगे बात बोले जी। Madam, once my patient is in labor, I will give her one-to-one monitoring. I will check her. I will do continuous fetal heart rate monitoring. My aim is to maintain her level between 4 to 7 millimole per liter. If levels are not maintained in this stage, then I will start the insulin infusion and will monitor for this. Once I will be कैसे vigilant. इंसुलिन मैडम इन्फ्यूजन कैसे जाएगी? मैडम इंसुलिन इन्फ्यूजन हम स्टार्ट ऐसे करेंगे ड्रिप ही लगती है उससे जी। हाँ जी 50 यूनिट इन रेगुलर इंसुलिन इन नॉर्मल सेलाइन एंड 50 अदर मैडम 50 यूनिट इंसुलिन। इंसुलिन पंप लगाते हैं ना, 50 जी यूनिट्स मैडम 50 cc नॉर्मल सेलाइन में डाल के 50 cc 1 यूनिट नॉर्मल पर आवर सेलाइन पे इंसुलिन पंप में। लगा यस देते हैं। मैडम। और दूसरी तरफ मैडम साथ एक न्यूट्रलाइजिंग ड्रिप भी लगाई जाती है। डेक्सट्रोज डेक्सट्रोज की ड्रिप साथ हम लगा बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है। और और 500 cc की होती है। जी और once the baby is delivered I will hand over the baby to the pediatrician for BSR monitoring and I will actively manage the third stage of the labor and post natally I will counsel the patient to start the early and exclusive breastfeeding and maintain the postnatal level between the 5 to 9 millimole per liter. I will stop the insulin infusion once the patient start taking oral and half it before that and as the patient is DDM I will counsel her that there is 5 to 50% risk of developing type 2 diabetes and I हम्म, will counsel her to check her fasting and fasting blood sugar level at 6 weeks and do the lifestyle modification if like weight reduction and healthy diet and exercise ठीक है, and गुड। early अच्छा and अगर यही booking in the पेशेंट next pregnancy.
30 वीक्स पे ही आई थी, बहुत एक्सेसिव नोजिया, वॉमिटिंग और वेरी हाई ब्लड शुगर लेवल्स के साथ। तो क्या करेंगे? मैम फिर वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के लिए उसको मॉनिटर हाँ, करेंगे मैम, एडमिट करेंगे, कैसे क्या होगा? आईसीयू में एडमिट करेंगे, और उसको हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स उसके मॉनिटर करेंगे, और उसकी शुगर लेवल उस लिहाज से कंट्रोल करेंगे। हम्म। और क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? क्या ब्लड टेस्ट भेजोगे? वेरी बहुत ज्यादा उसका अगर वो आ रहा है, नोजिया वॉमिटिंग है और वेरी हाई ब्लड मैम शुगर। कीटोन्स लेवल उसके करवाएंगे हम, ठीक है। और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स कराते करवाएंगे, हैं। सीरम मैं इलेक्ट्रोलाइट इसलिए पूछ रही कीटोन्स। हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी रेयर थिंग टू हैपन, होती भी टाइप 1 डायबिटिक्स में ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये सवाल मुझे अक्सर कैंडिडेट्स कहते हैं कि एग्जामिनर्स जो है ना, अच्छा देखो नोजिया वॉमिटिंग अदरवाइज भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो डीके की तरफ जा रहे हैं। यू विल गेट फ्यू जी मैम। इन्वेस्टिगेशंस डन, हाई ब्लड शुगर लेवल्स विद nausea vomiting, excessive nausea vomiting, dehydration में you get the serum electrolytes done, ketone levels done, एंड देन एंड उसमें फिर आप डिसाइड करते हो, क्योंकि बहुत सिवियर इंसुलिन डेफिशिएंसी के अंदर जो है आपका फैट लिपोलाइसिस भी होता है, कीटोन्स भी रिलीज होते हैं, प्रोटीन्स भी का जी भी लाइसिस होता है, ब्रेक डाउन होता है, और उसके बाद फिर आप उसको डिसाइड करते हो आईसीयू एडमिशन। आईसीयू एडमिशन इसलिए क्योंकि उसको आप इंसुलिन भी इन्फ्यूजन में लगाया होता है, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स भी रिप्लेस हो रहे होते हैं एग्जैक्ट मेजरमेंट के हिसाब से। तो ये भी थोड़ा सा एक देख लेना, ठीक मैम, है? सो गुड एबीजीज भी तो विद्या, यू होंगे इस वर पेशेंट गुड। के? एबीजीज भी तो एबीजीज होंगे भी इसके साथ? होंगे, बिल्कुल एसिडोसिस होता है ना बेसिकली, तो सारा उसको रिप्लेस करने के लिए इसकी थोड़ी सी थ्योरी है, वो अगर बीच में कहीं से देख के मैम चले जाए, ऐसे मैंने सवाल हो जाए तो हाथ डायबिटीज पंप हो जाते। करवाई सो यू वर गुड। जी बिल्कुल, ठीक है। सो और मैम ओवरऑल ट्रिगरिंग आई फैक्टर्स लाइक को इट। सारे जी। ट्रिगरिंग फैक्टर्स को भी रूल आउट करेंगे ना मैम, कि इंसुलिन ले रही है नहीं ले रही, डाइटरी कंट्रोल क्या थे, नोजिया वोमिटिंग एक्सेसिव हुआ, फीवर। ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। सो इसके अंदर ये जरूर याद रखना कि हर डायनोजिया वॉमिटिंग विद शुगर को डीके नहीं लेबल कर देना, हो सकता है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो। तो उसके अंदर जैसे अभी जी अभी किसी मैडम। ने सारे रिस्क फैक्टर्स विद इन्वेस्टिगेशंस, उसके बाद फैसला होता है कि पेशेंट ने आईसीयू में जाना है या नहीं जाना। अच्छा, सो ओवरऑल यू आर वेरी गुड मदिया, आई लाइक इट। इसी तरह प्रिपेयर, देखो बेसिकली बात ये है कि टॉपिक्स विद प्रेजेंटर्स हमने इसलिए किया ताकि प्रिपेयर होके आए। आई वांट यू टू टॉक अबाउट इंसिडेंसेस, आई वांट, क्योंकि उस तरीके से आपका तभी एक वाइवा जो है वो डिफरेंट होगा फ्रॉम द नॉर्मल कैंडिडेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे आई लाइक अबाउट नुसरत बॉस, कि वो शुरू में अपना बता रही होती थी कि मेरा माइंड मैप ये है अबाउट दिस पेशेंट, विच इज गुड। दिस अ वेरी गुड आइडिया। उससे ये होता है कि अगर आपका टाइम कवर भी हो गया है किसी एक पॉइंट को लेकर, तो आपने एक दफा पूरा एक प्लान, एक एम ऑफ मैनेजमेंट दिया हुआ है एग्जामिनर को, तो उसके हिसाब से बाय द एंड अगर टाइम कवर भी हो गया तो एग्जामिनर नोज के इस पेशेंट को टर्म तक लेके जाना था, इसका ये करना था, और उसके बाद। तो इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टिप है स्पेशली नुजरत के लिए, कि इस चीज को मैनेज कैसे करना है, कि आपने माइंड मैप कब बोलना है और उसकी डिटेल्स कब बोलनी है। अगर इसी तरह के पेशेंट, हमने दो सिनेरियोस किए डायबिटीज के, मदिया वाला या नुजरत वाला, अगर इसी तरह का पेशेंट हो, जैसे कि हमें सिनेरियो दिया हुआ है और अब हम मैनेज कर रहे हैं, तो उसमें यू कैन से इन द फर्स्ट 3 लाइंस क्विकली, जिसमें आपको हार्डली 30 सेकंड शायद लगेंगे, माय एम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट इज टू डू काउंसलिंग, आई विल काउंसिल पेशेंट। वो आप दोनों ने बहुत अच्छी बोली कि पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस, बट डोंट से द होल बुक, एकदम से पूरी बुक ना, कॉम्प्लिकेशंस की 2-3 इंपॉर्टेंट फीटल कॉम्प्लिकेशंस, 2-3 इंपॉर्टेंट मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस उसकी बोलकर, उसके बाद अभी हम अगर सिर्फ एम ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, तो आपने काउंसलिंग और एडमिशन है तो एडमिशन क्यों किया वो बोलना है, और फिर कोई और एडेड चीज अगर है, जैसे कि किसी पेशेंट में डायबिटीज के साथ अनीमिया हो, या किसी में यूटीआई हो, या किसी में जो भी चीज हो, तो वो साथ में उसे ट्रीट किया, या अभी हम सिर्फ एम ऑफ मैनेजमेंट के आई विल करेक्ट हर अनीमिया, आई वुड लाइक टू ट्रीट हर फॉर द यूटीआई, आई वुड लाइक टू करेक्ट हर दिस थिंग, ठीक है, वो करके उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इधर ही बुला लो। और फिर थर्ड नंबर के ऊपर आपने कहना है कि माई एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू टेक हर टू टर्म और नियर टर्म और एज क्लोज टू टर्म एज पॉसिबल विद स्ट्रिक्ट फीटो मैटरनल मॉनिटरिंग, ठीक है। ये आपने एक अपना माइंड मैप फौरन से बोल दिया 2-3 लाइनों में, उसके बाद आप इसको एलैबोरेट करोगे। आप फिर बोलोगे आई एंड माई प्लान ऑफ मैनेजमेंट विल कंटिन्यू
एज जैसे शी इज एडमिटेड इन द पेशेंट, आई हैव हर ब्लड शुगर लेवल्स, और फिर ब्लड शुगर लेवल्स मैनेज करना शुरू करो और बोलो कि ये ब्लड शुगर लेवल्स है. इफ शी इज नॉट हैविंग एनी अदर रिस्क फैक्टर और कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद डायबिटीज, तो फिर तो मेरे टारगेट ब्लड शुगर लेवल्स आर 1 hour आफ्टर मील इज 140. और उसके लिए मैं इसको देखूंगी, आई वुड लाइक टू सी कि वो खा क्या रही है, वो ब्रेकफास्ट में वो, उसके बाद एक्सरसाइज कितनी कर रही है, और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स है या नहीं, और फिर मैं इंसुलिन स्टार्ट दूंगी. और ये करके once the levels are fine, I will discharge her. 2 weeks के बाद she will come back with the normal blood sugar levels. और फिर मैं उसको I can admit her again for the DEXA cover और can advise her DEXA cover with monitoring at home, और उसकी इंसुलिन मैं इस तरह बढ़ा के भेज दूंगी. और फिर मैं इसका फिर after every 2 weeks she will be coming to me. If she is only having diabetes but no macrosomia or any other complication, then I will not get her biophysical profiles or Doppler or growth scan and again and again. However, if she is having diabetes with any other complication, maybe macrosomia, maybe any other thing, poly या कुछ भी, even IUGR is there, can happen with diabetes. तो कुछ भी ऐसा है तो फिर मैं इसका वीकली बायोफिजिकल भी कराऊंगी, मैं इसका 2 weekly ग्रोथ स्कैन्स भी कराऊंगी, और मैं इसका 2 weekly डॉक्टर भी कराऊंगी. ठीक है. और फिर मैं इस तरह लेके आई विल टेक हर टू टर्म. और टर्म क्या है, इफ अ डायबिटिक पेशेंट इज देयर विद अ कॉम्प्लिकेशन, देन बेटर डिलीवर हर एट 38 वीक्स. 38 वीक्स का मतलब ये 37 completed weeks, 37+6 कह दो, या 38 weeks कह दो. इट्स इवन बेटर इफ यू हैव LMP ऑफ द पेशेंट एंड यू हैव EDD ऑफ द पेशेंट. तो आप बोलो कि 38 weeks, विच मीन्स के अगर फॉर एग्जाम्पल उसकी 15 जुलाई उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट बनती है, तो आप बोलो कि 1 जुलाई को मैं इसकी डिलीवरी करूंगी, बिकॉज उस पर वो 38 weeks होगी. अगर आप इस तरह बोलो तो ये और भी अच्छा लगेगा. ठीक है. मैं वही बार बार कहती हूँ कि आपको एक नॉर्मल एवरेज कैंडिडेट से थोड़ा सा बातें डिफरेंट इसलिए बोलनी है ताकि एग्जामिनर अगर सो रहा है तो वो उठ जाए, या वो एकदम से बोले कि हाँ शी इज रियली टॉकिंग इन प्रैक्टिकल टर्म्स, शी इज नॉट जस्ट टॉकिंग इन थ्योरी. क्योंकि वही बात है कि सेंसिबली प्रेजेंस ऑफ माइंड, बार बार एग्जामिनर को एहसास दिलाना कि मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, इससे आपको एक्स्ट्रा बहुत पॉइंट्स मिल सकते हैं. सो आप 38 वीक्स पे, इफ अ पेशेंट इज डायबिटिक विद नो अदर कॉम्प्लिकेशन, और उसका बेबी भी ठीक है, सब कुछ ठीक जा रहा है, बट शी इज ऑन इंसुलिन, देन अगेन आई वुड से कि आप उसे डोंट टेक हर बियॉन्ड 39 वीक्स. ठीक है. 39 पे उसे कर दो डिलीवर. और क्योंकि यू नेवर नो शी इज ऑन इंसुलिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब जो गाइडलाइंस है वो कहती हैं कि अगर सिर्फ डाइट पे कंट्रोल है तो 40 वीक्स तक ले जाओ. मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी कि 40 से ऊपर ना लेके जाओ. सो हम इस चीज को इसी तरह ही फॉलो करेंगे विद कॉम्प्लिकेशन, नॉट बियॉन्ड 38 वीक्स, without complication, but on insulin, not beyond 39 weeks, and only on diet. Then even अगर oral hypoglycemics भी हैं तो भी मैं कहूंगी 39 पे कर दो, but if she's only on diet then 39, then 40 weeks. और फिर आप उसका जो है वो हमने देख लिया, सिजेरियन के अंदर भी नुज़रत में बता दिया क्या करना है, और डिलीवरी में मदियाना में बता दिया क्या ड्यूरिंग डिलीवरी हमने इंसुलिन को कैसे लेके जाना है. और आफ्टर डिलीवरी बार बार बोलो कि if she's GDM, then more than 99 or 95% chance that sugar will come to normal after delivery. However, initial 4 hours में आप उसका early blood sugar level कर लो, और उसके बाद आप उसका जो है 3 times a day कर लो, और when you're discharging, or sending her home, तो फिर आप उसको कहोगे चाहे हफ्ते में एक कर ले, और फिर 6 weeks के बाद अपना एक फास्टिंग लेवल करा ले, और and then you'll talk about contraception. ठीक है. कॉन्ट्रासेप्शन तो सारी मैम वो ले 38 सकती है. वीक्स पे इंसुलिन के पेशेंट में 38 वीक्स पे नहीं करेंगे डिलीवरी प्लान किसका? और इंसुलिन पेशेंट IDDM की है पेशेंट, तो उसमें हम 38 वीक्स से प्लान करेंगे डिलीवरी. 38 इज गुड. यस. मैं तो गाइडलाइंस की वजह से कह रही थी, गाइडलाइंस बहुत आगे तक लेके जाती है पेशेंट को, डायबिटीज वाले को. वो कहते हैं 40 तक ले जाओ, बोले इसलिए मैंने कहा था, वरना विद इंसुलिन भी 38 इज ऑल राइट, बट विद कॉम्प्लिकेशन 38 यू कैन, आप इस तरह याद कर लो कि 38+6 यानी 39 पे आप विद इंसुलिन कर सकते हो. जी कि मैम सना. हमें अगर मैम इंड्यूस प्लान करना मैम है, हमें मदिया का इंड्यूस जो ना, प्लान पेशेंट करना है ठहरो एक मिनट. जी मैम सना. मैम अगर हमें जी इंड्यूस डॉक्टर. करना है डॉक्टर 38 रूबा. वीक्स पे करेंगे इंड्यूस. डॉक्टर रूबा, अक्सर मेंटोर कहते हैं कि ना आप शुरू में इतनी ज्यादा किसका? कॉम्प्लिकेशन नहीं बता. एक मिनट. सॉरी सारा. सारा सॉरी. सना आप क्या कह रहे थे? अभी सारा आपकी बात सुनते हैं. जी सना. मैम जो हमें इंड्यूस करना होता है, हमें प्लान ऑफ डिलीवरी अगर इंड्यूस करना है तो हम 38 पे प्लान करेंगे ना पेशेंट को. हम पहले से काउंसलिंग करनी होगी, बताना होगा पेशेंट को. लेकिन करना कब है? आपको तो एग्जैक्ट ये पता होना चाहिए ना कि 38 वीक्स आपने पे मैम. इंडक्शन करनी कब है. इट्स ओके इफ विद इंसुलिन आप 38 कह रहे हो, दैट्स आल्सो फाइन, जस्टिफाइबल है. मैं इस पे वो नो नहीं कर रही. ठीक है. आप ठीक कह रहे हो सना. थैंक यू मैम.
वेलकम जी सारा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रूबा। अस्सलाम डॉक्टर रूबा, वालेकुम जी। अक्सर ये सब मेंटोर कहते हैं कि आप स्टार्टिंग में भी इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं बताओ कि पेशेंट डर जाते हैं ना। आपने तो इतना बता दिया और पेशेंट को आपने डरा दिया, आप कैसे मैनेज करोगे? देखो बात ये नहीं है, एक चीज तो ये आपकी मेरा तो ये ख्याल है आगे लाइफ के लिए भी, प्रैक्टिस के लिए भी, कि आपने पेशेंट को बहुत आप जैसे कहते हैं ना होप के साथ या उस तरह लेके नहीं चल रहे होते, आपने रियलिटी में बात करनी होती है पेशेंट से। डायबिटिक पेशेंट के अंदर इफ यू आर एडमिटिंग पेशेंट, पेशेंट हैज टू रियलाइज एंड हैज टू अंडरस्टैंड कि व्हाई आर यू एडमिटिंग हर इन द हॉस्पिटल। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात है। असल में हम उसके हॉस्पिटल एडमिशन को जस्टिफाई करें इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर एंड इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट हरसेल्फ। अगर आप क्लिनिक पे बैठे हो और आप पेशेंट से कहो आपको मैं दाखिल कर रही हूँ, वो कहेगी मेरी 190 ही तो शुगर आई है, सिर्फ 190 पे आप मुझे एडमिट कर रही हैं। तब तो आपने उसको बताना है व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज दैट कैन हैपन, एंड व्हाट इफ यू आर नॉट एबल टू टेल हर द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम एंड शी कम्स आफ्टर 2 वीक्स विद आईयूडी। एक हम्म। पेशेंट को एहसास होगा कि उसकी एब्नॉर्मेलिटी डेवलप हो सकती है या आईयूडी हो सकता है, या देखो जिस पेशेंट में अगर डायबिटीज पॉली कर देना या जिसमें मैक्रोसोमिया कर दिया, उसमें फ्रैंकली किस दिन आईयूडी हो जाए हम नहीं कह सकते। यानी उसकी अच्छा। हाई ब्लड शुगर लेवल्स इतनी खराब रह चुकी है कि वो बच्चा ही मैक्रोसोमिक हो गया वह। ठीक है, वी ऑल नो द पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड मैक्रोसोमिया। तो अगर वो मैक्रोसोमिया हो चुका है तो वो आईयूडी भी हो सकता है। तो वी हैव टू टेल पेशेंट अबाउट द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन एक्चुअली हैपन इंस्टेड ऑफ हाइडिंग इट। आप उसे बताओ कि आपके शुगर लेवल्स डिरेंज्ड हैं और आपका मैक्रोसोमिया आया हुआ है। नंबर 1 पे तो आईयूडी, नंबर 2 पे एब्नॉर्मेलिटी, नंबर 3 पे प्रीटर्म लेबर, ये चीजें हैं। आई हैव टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि अदरवाइज, और प्रीटर्म में यू हैव टू टेल द पेशेंट कि क्योंकि प्रीटर्म हो सकता है तो प्रीटर्म के बाद आपके चांसेस ऑफ सर्वाइवल कितने कम हो जाएंगे बेबी के। तो क्योंकि ये सारी चीजें बचानी है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जी। बेसलाइन ये है कि ब्लड शुगर हैज टू बी नॉर्मल। इसलिए आपको मैं दाखिल करूंगी। ठीक है, इसमें आपने ये नहीं सोचना है कि पेशेंट डर जाएगा या नहीं डर जाएगा, तो क्या तब डरे जब एक्चुअली वो चीज हो जाए, नहीं। इसी तरह अगर पेशेंट हमारे पास बहुत हाई ब्लड प्रेशर के साथ आता है, तो क्या हम उसे नहीं बताएंगे पॉसिबिलिटी ऑफ एक्लेम्शिया? क्या हम उसको नहीं बताएंगे कि उसके अंदर खुदा ना खासा सेरेब्रल हेमरेज भी हो सकता है? अगर इतना हाई ब्लड प्रेशर था, हम उसे सब कुछ बता के एडमिट करेंगे। उसे रीजन ऑफ एडमिशन पेशेंट को और उसके अटेंडेंट्स को हर पता होगा तो होगा, तो ये बात नहीं है कि वो डर जाएगा या क्या होगा। हमने उसको इसी तरह ही करना है। हमने जितना रियलिटी उसके सामने उसका राइट है कि उसको रियलिटी का पता हो। अच्छा डॉक्टर मैम रूबा, ये ये जो डॉक्टर नदिया का केस था, जिसमें वो जी, 20 वीक्स पे मैक्रोसोमिया थी, तो फीटल इको हम कराएंगे या नहीं 30 कराएंगे? वीक्स पे नहीं, अच्छा 30। फीटल एको नहीं करानी। 30 वीक्स पे ओके। है अगर, तो ग्रॉस एग्जामिनेशन उस पे अल्ट्रासाउंड पे कोई आता है खदशा के बेबी के वैल्व का मसला हो सकता है, हार्ट के किसी चेम्बर का, तो मेको, वरना इन चक्करों में नहीं पड़ना। फीटल एको की ओके। जरूरत सिर्फ तब पड़ती है जब प्रीवियस उस बच्चे के सिबलिंग में कोई हो या पेरेंट्स में हो कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज का मसला आ रहा हो। तो फीटल ओके। एको की इवन डायबिटिक में भी जरूरत नहीं पड़ती है, टाइप 1 में भी या क्रॉनिक डायबिटिक में भी, क्योंकि वो भी आपका 22 वीक स्कैन पे पहले पता लग जाता है कि एको करानी है या नहीं। मैम ये डॉक्टर रूबा पोस्ट ये पेरेंडियल जो 1 आवर और 2 आवर है, इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी है और उसकी रीजन क्या है? अनार प्रेगनेंसी में कहते हैं कि इवन फास्टिंग या प्री प्रेंडियल की भी शायद इतनी रीजन नहीं है जितनी 1 आवर आफ्टर पोस्ट प्रेंडियल की है, क्योंकि उस टाइम पे ही सबसे ज्यादा इंसुलिन और मेटाबॉलिज्म का होता है। वैसे तो 2 आवर्स का भी है, लेकिन अगर आपने एक चेक करनी है तो 1 आवर इज मोर रिलायबल टू मैनेज द डॉक्टर पेशेंट। आपने डिस्चार्ज पे जो बताया जीडीएम की पेशेंट को कि आप वीकली उसकी करते रहेंगे, 6 वीक्स पे तो हम कर ही रहे हैं, तो क्या वीकली भी करते रहेंगे इन 6 वीक्स के दौरान? नहीं, वो मैंने पता है क्यों कहा है, वो भी नहीं करे, वो कोई रिकमेंडेड नहीं है। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जो होते हैं ना ये वाले सिजेरियन वाले पेशेंट, देन दे जस्ट स्टार्ट टेकिंग टू मच ऑफ मीठा एंड दे फॉरगेट अबाउट, और फिर दे कम बैक विद गे फूड, और उस वक्त जब आप कराते हो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ रही होती है शुगर। तो 6 वीक्स तक उसका अभी तक पोस्टमार्टम टाइम में जीडीएम का पूरा इफेक्ट एब्सोल्युटली बैक टू नॉर्मल होने का भी नहीं है, तो उसमें देर इज नो हार्म के कर भी ले, इंस्टेड कि वो गेप एपी या गेप वूंड के साथ आ जाए। सिर्फ मैम ये इसलिए कहा था। मदीहा का अस्सलाम पेशेंट तो वालेकुम मैम, सिजेरियन पे गया वैसे है ना? एनुअली 6 फायजा हेलो वीक्स से एंड पहले सुन एनुअली है। मैम, ये 6 वीक्स पे मदीहा तो अस्सलाम हमने एच बी
पहले फायजा बोले फिर नाइला। जी फायजा। मैम ये मदिया का जो पेशेंट था मैम, वो कट रही थी आवाज, तो मुझे सुनाई नहीं दिया। मैक्रोसोमिक था तो उन्होंने सिजेरियन ही किया होगा ना उसका। नहीं, उसने अच्छा ये किया कि उसने इतनी स्ट्रिक्ट ब्लड शुगर कंट्रोल की 30 वीक से कि बाय द टाइम शी रीच्ड 38 वीक शी वाज एबल टू टेक इट 38 वीक्स, क्योंकि वो इतनी अच्छी शुगर कंट्रोल हो गई कि वो मैक्रोसोमिक रहा ही नहीं उसके बाद। और मैम ओके, फिर सीवियरिटी इंड्यूस ऑफ किया। पोली नहीं बताई कि फिर उसे माइल्ड इंड्यूस किया, मॉडरेट। डिलीवर किया। जी नाइला, रिकॉर्डिंग में सुनना फायजा। जी जी नाइला। जी मैम वो नहीं बताया कि पोली का मतलब माइल्ड मॉडरेट सीवियर है। डिलीवरी तो मतलब वो तो फिर करवाई। आप उसमें वो आप अपने फॉर्मूला में देख लो ना, टेबल में माइल्ड मॉडरेट, इट वाज एक्चुअली बिलो माइल्ड, इट वाज अ बॉर्डर लाइन 20 AFI मैंने कहा था। नहीं A5 मैम बताया मैम। स्पॉन्टेनियस जी लेबर का वेट नहीं करेंगे इतनी अच्छी कंट्रोल पे? स्पॉन्टेनियस मैम भी कर लो, स्वीपनिंग कर लो, बिल्कुल आप कह भी सकते हो। अगर नई लेबर में गई तो 38 वीक्स पे इंडक्शन। जी ठीक है, सो डॉक्टर रूबा, गुड। जी बस एक लाइन मुझे बता दें कि ये जो जैसे बुक्स में लिखा होता है बेसल बोलस और बायोफेजिक, जो हम रटा मार के बताते हैं, जरूरत नहीं तो है बोलने की। नहीं, हाँ, डोंट अच्छा यूज हम दीज टर्म्स, जस्ट टॉक अबाउट द डोज। आपने उसका इंसुलिन के यूनिट बोलने हैं और आपने इंसुलिन का नाम बोलना है। ये बाय आप क्या वार्ड में राउंड में आपका कोई सीनियर ऐसे बोलता है? वो तो आपको डायरेक्ट नहीं, लिखवाते हैं कि इतने यूनिट बिल्कुल इंसुलिन TDS, इतने HS रात को 10 बजे रात को इतनी इंसुलिन लगानी है, सुबह दोपहर शाम इतनी लगानी है। तो नहीं, आप हम ऐसे वो बोलेंगे कैलकुलेट। जी एवरीथिंग आप फिर। ऐसे बोलो, हाँ, फिर अकॉर्डिंग टू। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कैसे पता, वो नहीं पूछेंगे, उन्हें वही समझ आ जाएगी कि आपको पता है। ठीक है। ठीक है, चलो गुड। सो आई थिंक Yeah, baby, you should go where you wanna go, baby, why you here? Yeah, nobody gonna change, but no for the now, yeah. Like the minute, ko tipu sa dan ko pigi, yeah. Jangan ko balik, abuti banyak ko di sini. Ko balik semua rasa sayang yang saya kasih untukku. Kau ambil hati lalu kau patahkan semua, let it go. No, coba untuk mengerti apa yang saya dapatkan, hanya luka dan sakit. Dan sekarang semua sutra berarti. Kau bikin macam samakan hati. Kau coba bermain with your own way. Kasih tinggal rasa yang semua mati. And I got making beautiful, but baby you want me to let